हम देखेंगे। कल जो आखिरी क्वेश्चन था रिमेनिंग पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर अगला वीक देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ द लेक्चर। सी है नाउ। कल का आखिरी क्वेश्चन क्या था? कल ये बताया था मैंने, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आई बताया था। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई इज इमेजिनरी नंबर। 1 minute. Yes, here now. What is the value of I? 1 minute. Yes. So here now, first of all, the value of I is equal to root minus 1. I square is equal to minus 1. I cube is nothing but I square into I. I square is nothing but minus 1 into I. So it is nothing but minus I. Okay. What is the value of I raised to 4? I square into I square. Minus 1 into minus 1 is the plus 1. What is the value of I raised to 5? I square, I cube. I square minus 1 और I cube की वैल्यू minus I. तो ये minus minus become plus I. I raised to 6 की वैल्यू देखो, I square I raised to 4. ये हो गया minus 1. I raised to 4 भी 1. तो कितना मिला? minus 1. तो इन सब में एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो I square की वैल्यू minus 1. I raised to 4 की वैल्यू plus 1. I raised to 6 की वैल्यू minus 1. मीन्स अल्टरनेटली हम यहाँ कर सकते हैं I का पावर even है तो 1, 4 है तो minus 1, 6 है तो plus 1, मतलब अल्टरनेट. It is I square is nothing but minus 1. I raised to 4 plus 1, I raised to 6 is the minus 1, alternately. Only you have to remember first value, I square minus 1, I raised to 4 plus 1, I raised to 6 minus 1, tell me, I raised to 8 is the 1, then I raised to 10 is the minus 1, alternately. For odd or even numbers, 2, 4, 6, 8 and 10 and so on. So, what is important in that one? If there are even numbers in the I power, then we get alternately minus 1 plus 1 minus 1 plus 1. It is a method of remembering that one. तो उसके बाद देखो, अगर से I का पावर odd है, तो पहला याद रखो I क्यूब कितना minus I. देखो ये लोग करेंगे अपन, तो I क्यूब की वैल्यू minus I पहला याद होना जरूरी है. तो odd पावर 3 के बाद 5 कितना आएगा? अल्टरनेटली प्लस I. देखो आया कि I raised to 5 प्लस I. उसके बाद I raised to 7 odd नंबर कितना? minus I. I raised to 9 plus I alternately and so on for odd numbers. तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि पावर में अगर से इवन पावर है, जैसे कि I square minus 1 है, तो I raised to 4 plus 1, I raised to 6 minus 1, I raised to 8 1, I raised to 10 minus alternately minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. Right? If it in the power there is a even terms are there 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. Then similarly, if I cube is equal to minus 1, then I raised to 5 is the minus I, it is a plus I. I raised to 7 is a minus I raised to 9 is a plus I raised to 11 is a minus I. So yeah, technically this one. So you have to remember only first value. Then from that we can find very easily. There is no need to find out that one. उसको हमेशा बार-बार निकालने की जरूरत नहीं है. पहला ये इवन के वास्ते और ऑड के वास्ते याद रहा तो रिमेनिंग हम निकाल सकते हैं. ठीक है. चलो क्वेश्चन देखेंगे सबका. कल का क्वेश्चन ऐसा था. What is the question here? क्वेश्चन ऐसा था कि find x and y if
x and y. ठीक है, ये डिटरमिनेंट ये वाला डिटरमिनेंट था 4i i cube 2i 1 3i square 4 value minus 13 is equal to x plus iy. This is determinant given to us and we are interested to find out the values of x and y. So let us start now how to find that one. कल तो बताया मैंने क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हमने जस्ट देखो कैसा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट और आई then in the in this determinant 3i square 4 minus 3 1 then second element minus I cube 1 into 1 sorry 1 4 5 1 then afterward 2i then 1 3i square 5 minus 3 is equal to x plus I. Okay, now let us solve 1 minute. Okay, so let us solve it. 4i now 3i square into 1 3i square minus 3 into 4 minus become plus 12 minus I cube then 1 into 1 1 minus 20 plus 2i minus 3 minus 15i square okay is equal to x plus I. Now we can solve very easily here. If you observe this one, first of all, this determinant here. The determinant is a 4i I cube 2i 1 3i square 4 5 minus 3 is a I is there. So ये हो गया I minus 20. Remaining देखेंगे 1 3i square 4 minus 3i and then I. So it is 3i square into I. It is a 3i cube. Plus 12 minus I cube remain as it is plus 2i then remaining will be as it is no effect in that one. So let us solve that. 4 into 3 12 I into I cube I raised to 4 plus 12 4s are 48i then minus I cube into I here the power is 1 is there so here I cube into I raised to 4 minus become plus 20 cube then plus minus 6i okay then minus plus minus 32i cube is equal to x plus iy. 1 minute. Okay, so what happens now? What is the value of I raised to 4? What is the value of I raised to 4 is a 1 है ना? I square minus 1 I raised to 4 plus 1 I cube minus I raised to 5 plus I. These are the values. So simply kept in that one I raised to 4 is a plus 1 so only 12 plus 48i. See now I वाले terms देखो 48i में से 6 आ गया तो कितना प्लस 42i 48 में से ये माइनस का 6 आ गया उसके बाद माइनस i raised to 4 मतलब कितना 1 I cube की वैल्यू माइनस i तो क्या करेंगे देखो ये वैल्यू लिखता है I raised to value 1 x के बढ़ेगी बाकी सब as it is इसकी वैल्यू 1 I cube की वैल्यू माइनस I देखो माइनस 6i as it is इसको हाथ में लगाएंगे अपन ये as it is रखेंगे
अगले स्टेप में करेंगे इसको सॉल्व। तुम्हारे समझने के लिए -30 आई क्यूब की वैल्यू -i है ना। एक स्टेप थोड़ा बढ़ा गया, इसमें थोड़ी स्टेप बढ़ गई क्यों, तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए। i⁴ की जगह पे 1, ये एज इट इज i⁴ की जगह पे 1, i क्यूब की जगह -i, ये i क्यूब की जगह -i। लेट अस सॉल्व देम। ये सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो गया, ये हो गया 12 प्लस 48i -1, देखो प्लस माइनस -20i, then -6i, then minus become plus 30i is equal to x plus iy। so देखो आप कांस्टेंट टर्म सर 12 क्या 11 11 then 48 minus 20 और -6 मतलब माइनस ये होगा 48 प्लस 30 कितना हो गया 58 878 78 में से 26 गया कितना मिला, what is the value 78। what is the value here, what is the value tell me। देखो यहाँ पे 48i में से -20 आ गया, या फिर ऐसे करो 48i प्लस 30i, how much 48 प्लस 30i किसके बराबर है 48 प्लस 30 it is nothing but 58 68 78i में से -26i माइनस करो कितना मिलेगा 78 में से 26 गया कितना मिला, ये 2 और ये 7 में से 5 गया 2, मतलब कितना 52i प्लस का माइनस का प्लस का 11 प्लस 52i, 12 में से 1 गया 11 है ना, इसको i नहीं है रियल पार्ट, और ये टोटल कितना होगा ये सबका 52i इज इक्वल टू x प्लस iy। यहाँ तक आ गया सबको, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग यह है इसमें कि ये क्वेश्चन में अगर से सॉल्व करना है तो क्वेश्चन बुक में है देखो कैसा। अब इसके बाद ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी दो टर्म, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस iy इज इक्वल टू 5 प्लस 4i। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे, whenever the two complex number are equal then their real part मतलब इसको i मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, इसको नहीं है, इसको नहीं है, दोनों इक्वल रहेंगे, x इज इक्वल टू 5, इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा, मतलब जैसा iy इज इक्वल टू 4i, तो ये i से i कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना 4। तो इज द कांसेप्ट whenever two complex number are equal their real part are equal and their imaginary part are equal। उस तरीके से कह लो तो उस तरीके से ये कितना हो गया देखो यहाँ पे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 11, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट मतलब कितना यहाँ पे देखो 52i इज इक्वल टू iy, तो ये i से i कैंसिल, y इज इक्वल टू 52। आई होप यू गॉट द आंसर, ठीक है। तो कांसेप्ट क्या था इंपॉर्टेंट इसमें, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है उस समय उनका रियल पार्ट इक्वल है और उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, स्पेशली किसकी वजह होगी x की और y की। ओके, तो ये कल का क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट किए, अब एक नेक्स्ट वीक की तरफ जाएंगे, ये वीक कंप्लीट, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वीक ऑफ दैट वन। सो सी एंड नाउ व्हाट इज द बीट, so in that bit next bit is a minor and cofactor, we are testing to find out minor and cofactor, so what is the procedure, see here now। hello so see here now what is the minor and cofactor। suppose there is a determinant D, this is A11 A12 A13 A22 A23
831, 832, 833. So remember here, this is nothing but this tells us that it is the first element of determinant. It is present at first row and first column. हाँ, जैसे कल बताया मैंने determinant में यहाँ पे 2 3 4 -4 2 0 3 -1 2. तो ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन कहाँ पे है? देखो कहाँ प्रेजेंट है? ये है पहले रो में और कहाँ पे? पहले कॉलम में. इसको अगर से लिखने का है तो कैसे लिखेंगे? A11 मतलब ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? डिटरमिनेंट में पहले रो के और पहले कॉलम में. ये कहाँ प्रेजेंट है? रो पहली है मगर कॉलम कौन सी है? दूसरी है. इसलिए इसके नीचे सफिक्स में A12. ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? रो पहली कॉलम तीसरी, इसलिए A13. ठीक है. ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? R2 दूसरी रो में, कॉलम कौन सी? पहली, तो A21. ये A22, ये A23, A31, A32, A33. ठीक है. सपोज और एक बड़ी टर्म ले लिया समझो 4/4 का. ये 4/4 टर्म है. इसकी पोजीशन अगर देखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या है? बोलो कहाँ प्रेजेंट है? चौथे रो और कॉलम कौन सा? दूसरा. मतलब ये क्या हो गया? जब कॉलम रो पहले आएगा A42, चौथा रो कॉलम दूसरा. ये कहाँ प्रेजेंट है? बोलो R2 कॉलम कौन सी? चौथी. तो R2 मतलब कॉलम रो पहले और कॉलम चौथी मतलब A2. दिस वन इज द मेथड ऑफ राइटिंग दिस वन. अच्छा ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? इसकी कौन सी रो है? R3 मतलब ये होगा A3 और कॉलम कौन सी है? दूसरी A3. ठीक है. इट इज द मेथड ऑफ दैट वन. तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डिटरमिनेंट A11 A12 A2. अब इस सबका माइनस निकालने का है. तो सबसे पहले हम 2/2 का देखेंगे फिर 3/3 का. तो 2/2 में कैसे निकालेंगे देखो. अभी सब जो डिटरमिनेंट है A11 A12 A21 A22. ठीक है. इससे पहले निकालना है इसके माइनर. तो माइनस का फॉर्मूला है पहली एलिमेंट का माइनर इसका. तो माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे माइनर? तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालने का है वो उसकी पूरी कॉलम छोड़ के और पूरी रो छोड़ के बचे हुआ एलिमेंट मतलब कितना उसको कैसे करते हैं अपन? M11 माइनर ऑफ 11 इज इक्वल टू क्या बचेगा? लाइक दैट जनरल होता है. उसके बाद माइनर ऑफ रो वाइज है कॉलम वाइज है. ऐसा माइनर ऑफ A12 के बाद माइनर ऑफ A12. इसका माइनर कैसा? सेम कॉलम छोड़ो रो छोड़ो. M12 कितना मिलेगा तुमको? कॉलम छोड़ के रो छोड़ क्या बचा? A21. उसके बाद माइनर ऑफ A21 इसका माइनर निकालने का है. वही कंसेप्ट कॉलम छोड़ो रो छोड़ो क्या बचता है? M21 क्या है? A12 ये. और उसके बाद माइनर ऑफ A22 निकालना है. तो कैसे निकालेंगे माइनर ऑफ A22? इसकी कॉलम छोड़ो रो छोड़ो क्या बच गया? M22 is nothing but A11. It is a method of finding the minor. इसकी एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल जैसे कि T है. एक न्यूमरिक का एलिमेंट लिया हमने 2 -4 3 और 1. ठीक है. इसके माइनस निकालने का है. सबसे पहले पोजीशन लिख दो. ये कहां प्रेजेंट है? A11 पे. ये कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पे प्रेजेंट है. ठीक है. अब आगे ये होने के बाद आगे देखो A11 A12 A21 A22 ये निकालने के बाद आप माइनस निकालेंगे. तो पहली एलिमेंट का माइनर मतलब M11 कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ दिस वन नथिंग बट कैसे निकालेंगे? इसका माइनर निकालने का मतलब E11 का कॉलम छोड़ो रो छोड़ो क्या बच गया? एलिमेंट 1. उसके बाद M12 सेकंड एलिमेंट का माइनर मतलब इसका सेम कंसेप्ट कॉलम छोड़ो रो छोड़ो क्या बच गया? 3. उसके बाद
M21 मतलब इसका ये पोजीशन का कॉलम छोड़ो रो छोड़ो कितना बच गया -4 और फिर लास्ट में M22 निकालने का इसका माइनस तो कैसा कॉलम छोड़ो रो छोड़ो कितना बच गया। तो ये मेथड है डिटरमिनेंट सेक्शन 2 का है तो उस समय इस तरीके से निकालेंगे। माइनस आप क्या निकालेंगे इनके कोफैक्टर बाजू में। तो सबसे पहले कोफैक्टर का फार्मूला देखो तो माइनस हो गया। अब कोफैक्टर का फार्मूला देखो कोफैक्टर तो कोफैक्टर का फार्मूला है Cij is equal to -1 का पावर I plus G। Cij is equal to -1 का पावर I plus G। I मतलब number of rows, J means number of columns। ठीक है तो जितने माइनस रहेंगे उतने क्या रहेंगे कोफैक्टर्स। डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूं जैसे कि अब ये माइनर है तो मेरे को निकालेंगे कोफैक्टर को Cij से या फिर Aij से दोनों में से एक से डिनोट कर सकते हैं। सो कोफैक्टर इज आइदर डिनोटेड बाय Cij और Aij बोथ आर द सेम वन। अब समझो अपने को पहला कोफैक्टर निकालने का है पहले निकालता हूं तो बंदी वाले निकालेंगे। समझो पहला कोफैक्टर निकालने का ये तो यहां पे C I1 J1 तो यहाँ पर तो I1 J1 -1 का पावर I1 J1 और I1 J सॉरी इसमें जरूरत है M I J ये फार्मूला M11 ये कितना होगा -1 का पावर 1 और 1 2 -1 का पावर 2 +1 तो इसमें कितना होगा M11 है ना ये आ गया -1 का पावर 1 + 1 -1 का स्क्वायर +1 तो सिर्फ कितना बचा M11 है ना और M11 कितना निकाला 1 तो इसका पहला कोफैक्टर C11 या फिर A11 दोनों के मीनिंग सेम कितना आ गया। ठीक है अब बोलो इसका दूसरा कोफैक्टर तो I मतलब 1 J मतलब कितना 2 सब दो फार्मूले I1 J2 I1 J2 I1 J2 अब बोलो कितना है -1 का पावर 2 + 1 3 है ना ये आ गया -1 का पावर 3 M12 -1 का पावर 3 मतलब -1 है ना तो ये हो गया -M12 और M12 कितना निकालेंगे 3 इसको सभी वैल्यू क्या है -3 तो डायरेक्टली वी कैन सी दैट हियर C12 और A12 इज इक्वल टू कितना -30। अब देखो शॉर्टकट बता रहा है इसमें शॉर्टकट क्या है ये तुमको ये मालूम है शॉर्टकट क्या है कि ये सबको मालूम है -1 का स्क्वायर 1 -1 का पावर 3 -1 -1 का पावर 4 1 -1 का पावर 5 -1 ठीक -1 का पावर 6 मतलब -1 का पावर अगर से इवन है तो प्लस मिलेगा और ऑड है तो क्या मिलेगा माइनस। तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो इसमें कैसा देखो इसका कोफैक्टर निकालने का तो ये कोफैक्टर क्या हो गया C21 मतलब इस K21 अगर तुम लोग ये कितना हो गया 2 और 1 कितना 3 और क्या इवन 2 + 1 3 इज ऑड ऑड मतलब क्या आएगा माइनस। ठीक है तो ये माइनस आ गया और M21 कितना है -4 ये M21 की वैल्यू -4 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 4 देखो फार्मूला सॉल्व करके बता रहा इसको और वैल्यू आएगी चेक करो देखो इसका कोफैक्टर मतलब C21 -1 का पावर 2 + 1 I2 J1 -1 का पावर 2 + 1 3 मतलब -M21 -4 तो ये माइनस और M21 -4 दैट इज इक्वल टू +4 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये भी आंसर कितना आया तुम्हारा प्लस का 4 आया शॉर्टकट कैसा देखो शॉर्टकट कैसा C21 और A21 so 2 + 1 3 means odd means minus और M21 कितना है -4 तो माइनस बिकम +4 इसका बोलो
C22 कितना चेंज करेंगे 2 + 2 4 4 मींस E1 E1 मींस प्लस और M22 2 मतलब डायरेक्ट कितना लिखेंगे प्लस का 2। सो ये फार्मूला है कोफैक्टर का Cij या फिर Aij। एक तो फार्मूला से निकालो या फिर डायरेक्ट निकालो, दोनों का मीनिंग सेम है। डायरेक्ट में कैसे निकालेंगे देखो, इसका डायरेक्ट 1 + 1 2 तो मतलब -1 का पावर E1 -1 का पावर E1 मतलब प्लस और M11 कितना है 1 तो प्लस का 1 मतलब डायरेक्ट 1। ओके, उसके बाद C12 मतलब 1 + 2 3 3 मींस ऑड और ये कितना है माइनस का 3 विद द मेथड। एग्जांपल और लेंगे अपन इसमें। सपोज one example is again you take here example ऐसी समझो कि एक डिटरमिनेंट है 4 - 3 2 और 1 का, इसे निकालने का -4 फैक्टर। तो सबसे पहले इसके बाजू में इसके एलिमेंट ये 1 8 अब बोलो सबसे पहले इसका माइनस निकालेंगे। तो इसका माइनस मतलब क्या M11 ठीक है M11 इक्वल्स टू व्हाट माइनर ऑफ A11 इसका माइनर इज इक्वल टू M11। बोलो कितना है इसका माइनर, कॉलम छोड़ के रो छोड़ के कितना बच गया 1 ठीक है। उसके बाद माइनर ऑफ A12 मतलब M12 कितना है माइनर इसका ये पोजीशन का, कॉलम छोड़ के रो छोड़ के आ गए 2। उसके बाद माइनर ऑफ A21 मतलब M21 इसका, तो क्या करेंगे सेम कॉलम छोड़ो रो छोड़ो माइनस कर दिया। नाउ माइनर ऑफ A22 मतलब ये कॉलम छोड़ो रो छोड़ो कितना बचता है 4। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए सबसे पहले A11 C या फिर दोनों में से C11 या फिर A11 तो उस टेक्स्ट में A11 बोलो कैसा ये भी देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द फार्मूला, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसा 1 और 1 2 2 E1 क्या ऑड E1 मतलब प्लस और M11 कितना है 1 इसका आंसर कितना है +1 ठीक है। नेक्स्ट है A12 का कोफैक्टर इसका, तो कहते हैं क्या लिखें 1 और 2 3 3 मींस ऑड मतलब -9 और इसका माइनर कितना है M12 2 3 हो गया -9 समझा गया। अब देखो A21 2 और 1 3 3 ऑड क्या इवन ऑड है तो माइनस इवन है तो प्लस ऑड है तो माइनस और M21 कितना है माइनस का 3 तो माइनस बिकम प्लस। A22 2 + 2 4 इवन क्या ऑड इवन मतलब प्लस ये प्लस और M22 कितना है 4 मतलब डायरेक्ट +4। So it is the method of finding the minor and cofactor of any elements or any determinant 2 by 2। सर एरिया को हम 3 by 3 में लेंगे, 3 by 3 डिटरमिनेंट में भी हम माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। So I will take one example of 3 by 3. So see now how to find in 3 by 3. तीन बाई तीन केस में देखो समझो डिटरमिनेंट है इस पर सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या पोजीशन इसकी ये है A11 A12 A13 इसकी पोजीशन ये कहाँ पे है ये कहाँ पे इस पर ये 3 1 3 2 3 ये सब करके सब ये कहाँ प्रेजेंट है तीसरा रो पहला कॉलम इसके 3 रो ये कहाँ प्रेजेंट है दूसरी रो दूसरा कॉलम इसके 8 रो ये कहाँ प्रेजेंट है तीसरी रो तीसरी कॉलम इसके 3 ओके।
अभी क्या कर रहे थे, पहला रो पहला कॉलम से 1 1 इसके कॉम्पैक्ट पे माइनस निकालेंगे। सबसे पहले माइनस इसका थोड़ा काम ज्यादा है इसमें, तो इसका माइनस निकालते समय वही कंसेप्ट, इसकी कॉलम छोड़ो इसकी रो छोड़ो, तो क्या बच गए, डिटरमिनेंट में लिखो -1 2 2 -1, ठीक है। तो स्टार्ट है ना, देखो इसकी कॉलम छोड़े और इसकी रो छोड़ के ये एलिमेंट डिटरमिनेंट। अब माइनर ऑफ A12 मतलब M12, ये कितना आएगा, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट मतलब इसका निकालेंगे वही कॉलम छोड़ के रो छोड़ के, तो इसकी कॉलम छोड़ो पूरी, इसकी रो छोड़ो, क्या बच गया 3 2 4 -1। इसको तुम जो भी सॉल्व कर सकते हैं, -1 × 1 1 -4 डायरेक्ट करेंगे 1 -4 -3, ओके ये कितना -3 -8 -11, ठीक है। अब देखो माइनर ऑफ A13 मींस M13, कैसे निकालेंगे माइनर ऑफ A13, वही सेम कंसेप्ट, इसकी कॉलम छोड़ो इसकी रो छोड़ो, क्या बचा 3 -1 4 और 2, सॉल्व करो 3 2 6 -4 +4 मतलब कितना है 10, ये हो गया पहले इसके अलाउ द फर्स्ट रो। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अलाउ द सेकंड रो, मतलब डायरेक्ट निकालता है M11 M12 M13, दूसरा क्या आएगा माइनर ऑफ A21 मतलब कितना M21, कैसे निकलेगा सेम, इसका निकालेगा, तो इसके बाजू की पूरी रो छोड़ के और इसकी पूरी कॉलम छोड़ के क्या बचा देखो 3 2 2 -1, इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा -3 -4 -7 आया। अब कैसा, अब एकदम सिंपल है ना, अब कैसा, अब निकालेंगे M21 के बाद M22, डायरेक्ट बोलो M22 कैसे आएगा इसका, ये पोजीशन सेम, लिमिटिंग द कॉलम लिमिटिंग द रो, है ना, इसकी कॉलम छोड़ के इसकी रो छोड़ के क्या बचेगा 4 2 और 4 -1, तो सॉल्व करो कितना है -4 -8 -12, ठीक है, -4 -8 -12, देन M22 के बाद M23 बोलो, M23 के लिए बोलो कैसे आएंगे, ये है ना M23 मतलब ये, इसकी कॉलम छोड़ के इसकी रो छोड़ के, है ना, इसकी कॉलम छोड़ो इसकी रो छोड़, क्या बच गया 4 3 4 2 4 3 4 2, देखो this one 4 3 4 2, कितना है 8 -12 8 -12 -4। उसी प्रकार से M31 डिवाइड बाय M31, बस M31 कितना, ये यहाँ पे लिमिटिंग द रो लिमिटिंग द कॉलम, क्या बच गया 3 2 -1, कितना मिला 6 6 + 2 8, अगला है M32, यहाँ पे आ जाओ M32 मतलब ये पोजीशन, बोलो कॉलम भी रो भी ना, ये रो पूरी भी, इसकी कॉलम क्या होता है 4 2 3 2,
ना 8 8 माइनस 6 2। इसके बाद लास्ट एलिमेंट m33 और m33 कहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट कॉलम एलिमेंट रो कितना मिला 4 3 3 माइनस 1 4 3 3 माइनस 1 कितना है -4 -9 -13 -4 -9 -13. So these are all about the minors. Now we are interested to find out the cofactors. Minor पता है तो cofactors और निकालेंगे कितने minors हैं? There are 9 minors are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 cofactors are there. In the first cofactor A11 A11 A12 A13 A11 A12 A13 then A21 A22 A23 A31 Patel first cofactor tell me 1 plus 1 2 2 means even or odd even so the plus so what is first minor -3 so it is plus it is minus plus minus minus so it becomes -3 second one 1 plus 2 3 3 means odd or even it is odd so odd so it is a minus comes minus and what is minor minus a also this minus minus become plus a okay and then a 1 plus 3 4 4 even or odd even means plus and what is m13 10 so plus 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 so it is a plus 10 okay now 10 2 plus 1 3 2 plus 1 3 3 means odd means